Good morning, everyone. Today, I, Mrs. Nikki Shweta, welcome you in the part 2 of lesson number 5, the fundamental unit of life. Before starting this part, just take a recap of what we had studied in the part 1. In that part, we had studied many things about the basic of the cell. Cell is the basic structural and functional unit of living being. It is discovered by a scientist named Robert Hooke. And we had studied about the types of cell also, like prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Prokaryotic cells, which is present in the primitive organism, while eukaryotic cells are present in the developed organism. And we have a discussion about the difference between animal cell and the plant cell. We had also studied about the type of organisms based on number of cell into them, and it is unicellular and the multicellular one. So these all are the parts which we had already covered in part 1. I hope you have studied that part from your textbook and the topic is clear with you people. Today we will start with the part 2, and in this part I will explain you the basic structure of a cell which is present in each and every cell. See, when I have explained you the difference between animal cell and plant cell, there you have seen that some of the parts are present in animal cell, some are present in the plant cell. But today we are going to study about the common structure which is present in the animal cell and the plant cell. It is nothing specific कि हाँ ये हम जो पढ़ रहे हैं ये plant cell है और ये जो पढ़ रहे हैं ये animal cell है. It is the basic structure of a cell. So let's start. Basically, structure of any cell contains 3 parts. These parts. Which parts? Plasma membrane, cell wall, cytoplasm, nucleus and the cell organelles. Today we will cover all the 4 topics and the cell organelle part, because there are many cell organelles. That part we will cover in our 3rd video. Okay. Cell organelles, because we have to discuss about each and every cell organelle in the detail. So that I will cover in the next video of mine. Today we will going to cover all that 4 topics which is mentioned here. Plasma membrane, cell wall, cytoplasm, nucleus. See, the terms which is written here, it is nothing like that कि आपने ये नाम आज ही सुने हैं. These terms are going through your eyes various time in the study of yourself. आपने 8th standard में भी ये सारे नाम सुने हैं. But in the 9th standard you have to study them about in a little bit more detail. Okay. So we'll start with our first one, which is the, here in this figure I have shown you the basic structure of any cell. Like I have shown you here, the 2 cells are present here. One is the animal cell and another one is the plant cell. In plant cell you can see that that orange part is there. That orange part is the cell wall which is present in the plant cell. And these green dots are there present. These are the chloroplast which is exclusively present in the plant cell. Rest all basic parts are there. Cell membrane. Cell membrane क्या था? आपका एक covering थी जो पूरे cell को cover कर रहा है. Cytoplasm, the matter which is present inside the cell, it is cytoplasm. And the central part of cell which we called as nucleus. So these all are the basic parts of the cell. So whatever parts I have shown here, these all are the basic parts. ऐसा नहीं कि ये ही part cell में होते हैं. These all parts which I have shown here is cell membrane, cytoplasm and nucleus. This part is present in the
ऑल सेल, कॉमनली सारे सेल्स में ये होता है. एडिशनली आई हैव शोन यू इन दिस फिगर द सेल वॉल. दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर विच इफ यू वांट टू ड्रॉ, आपको मार्क्स इसके लिए नहीं मिलेंगे. दिस इज जस्ट द आउटलाइन ऑफ द सेल. ये कोई डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है सेल का. फॉर डिटेल स्ट्रक्चर यू हैव टू रेफर द टेक्स्ट बुक ऑफ योर सेल्फ. In that textbook, the 3D structure of cell is present. So, this is that. Now, we'll start with plasma membrane. Here, I have mentioned some of the points for the plasma membrane. First of all, you have to know that what is the meaning of plasma membrane. Plasma membrane क्या है? जैसे मान लो आपने घर बनाया या आपकी कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी कोई दूसरा इंसान ये ना बोले कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, आप एक बाउंड्री वॉल देते हो उसके अराउंड. सो इन द सेम वे सेल इज ऑल्सो हैविंग अ बाउंड्री वॉल अराउंड इटसेल्फ. उसके किनारे का एक लेयर है जिसके अंदर सेल का सारा कंटेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है अंदर की साइड पे. So that particular part is called as plasma membrane. It is a very thin membrane, बहुत पतला elastic membrane है. Plasma membrane is present in the animal cell also and in the plant cell also. दोनों cells में होते हैं, ठीक है. कोई भी टाइप का सेल होगा तो उसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों होता है? वो सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है, सेल के कंटेंट को, ठीक है. So plasma membrane is a semi-permeable membrane. First of all, we'll discuss about what is the meaning of semi-permeable membrane. Here, I would like to give you the example of the tea strainer. चाय को छानने वाली चाय छन्नी होती है. When you are using that tea strainer, तो उसमें क्या होता है, चाय पत्ती जो है वो ऊपर रह जाती है और आपकी चाय जो है वो कप में जाती है. दिस इज द वर्क ऑफ अ टी स्ट्रेनर. तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या टी स्ट्रेनर से सब कुछ पास हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, सबकी एंट्री अलाउड नहीं करता है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सेम इन नेचर. सब चीजों की एंट्री अलाउड नहीं करेगा, नहीं तो सेल के अंदर से कंटेंट बाहर जाते रहेंगे और सेल के अंदर भी कंटेंट अंदर आते रहेंगे. सो इट अलाउज द एंट्री ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स. जैसे कि आपके सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और सेल से बाहर कौन सी गैस जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है. So cell membrane or plasma membrane allows entry of oxygen and exit of carbon dioxide gas. ऑक्सीजन गैस को अंदर आने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो बाहर जाने देता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सेल. एंट्री एंड एग्जिट बोथ. सेल को आपने यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. Sometime you put the sprouts for the soaking. जैसे कि चना, मूंग, मटकी, इन सारी चीजों को आप पानी में सोक करते हो. When you soak it into water for overnight or 3 to 4 hours, आप क्या देखते हो कि उसकी साइज जो है वो चेंज हो गई. चना फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, मटकी फूल जाती है. वो ड्राई से क्या होता है, पानी उसके अंदर जाता है. तो हाउ दैट वाटर गोज इनसाइड? Because cells are allowing that water inside. अभी सेल अलाउ कर रहा है, मतलब किसके थ्रू वो वाटर सेल के अंदर जा रहा है? इट इज गोइंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है, ऐसा लेयर है सेल के अराउंड जो सेल को प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर, सेल को एक बाउंड्री वॉल देता है. एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल का क्या मतलब बताया मैंने? कि सबकी एंट्री और एग्जिट नहीं अलाउ करेगा. सिर्फ जो चीजें सेल के अंदर आनी चाहिए उसको अंदर आने देगा और जो चीजें सेल के बाहर जानी चाहिए उसको बाहर जाने देगा. ऐसा नहीं कि कभी भी सेल के अंदर कुछ भी अंदर आ रहा है और कुछ भी बाहर जा रहा है, ऐसा अलाउड नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. बाइलेयर मीन्स क्या है?
टू, बाय मीन्स टू होता है। सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि उसमें लिपिड को फैट भी आप बोल सकते हो, 2 लेयर है फैट की और उसके बीच में प्रोटीन की एक लेयर होती है। व्हेन यू स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हायर क्लासेस लाइक इन 12th और उसके भी आगे अगर आप स्टडी करते हो, देयर दे हैव अ डिटेल स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. But here in 9th standard you have to know that it is composed of bilayer of lipid and protein. This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उनको बाहर के इन्वायरमेंट से ये बचा के रखता है. The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. जैसा मैंने अभी आपको चाय की छन्नी का एग्जाम्पल देके समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम कैसा होता है, वही बातें यहाँ पे लिखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स. कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, कुछ चीजों को अपने अंदर आने देता है, जो चीजें सेल के लिए चाहिए. It also prevents movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Semi-permeable or you refer it as selectively permeable. जैसे अगर स्कूल के अंदर आना है आपको तो you must be the student of the school or either the parent of the school. That means school is also selectively permeable. किनको अपने गेट के अंदर आने दे रहा है? जो वो स्टूडेंट है या टीचर है या स्टूडेंट के पेरेंट है. ऐसे नहीं कि कोई भी आया कभी और स्कूल में आ गया. सो इन द सेम वे सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वर्किंग. वो भी अपने अंदर कुछ चीजों को आने देता है और कुछ चीजों को नहीं आने देता है. ठीक है. नाउ इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोसेसेस कि कौन सी प्रोसेस से सेल के अंदर सामान आ और जा सकता है. बट बिफोर दैट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. It provides an outer boundary to the cell and protects the cell from injury. सेल को नुकसान होने से बचाता है. अगर सेल के किनारे कोई बाउंड्री वॉल नहीं होगी तो कोई भी आएगा, जैसे अगर घर के किनारे बाउंड्री वॉल नहीं है, कंपाउंड नहीं है, कोई भी कभी भी सेल के अंदर आ जाएगा. तो वैसा ही यहाँ पे है. It allows the flow of materials and information between different organelles of same cell as well as between the adjacent cell. सेल टू सेल मटेरियल को ट्रांसफर करता है या सेल से दूसरे ऑर्गेनल्स के अंदर. सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर अलग अलग काम को करने के लिए ऑर्गेनल्स होते हैं. सो मुझे लग रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता चला. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक बाउंड्री वॉल है सेल के अराउंड, जो कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल को अंदर आने देता है और कुछ मटेरियल को बाहर जाने देता है. Here I have mentioned there are 2 processes by which material transferred in cell. These processes are diffusion एंड ऑस्मोसिस. 2 प्रोसेस है जिससे सेल के अंदर कोई भी मटेरियल आता है या बाहर जाता है. दैट प्रोसेसेस आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. दोनों प्रोसेस के नाम है ये. डिफ्यूजन फॉलोड फॉर गैसियस एक्सचेंज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा मैंने आपको भी बताया कि सेल के अंदर ऑक्सीजन आना चाहिए और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जाना चाहिए. तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूजन. एंड ऑस्मोसिस इज फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर. पानी के सेल के अंदर आने और बाहर जाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसका नाम है ऑस्मोसिस.
तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने चना और मूंग को रात भर जो भिगोया था स्प्राउट बनने के लिए, तो अगर वहां पे वो चना और मूंग अगर आपके स्वेल हो गए या फूल गए थोड़ी देर बाद, तो वो कैसे हुआ, कौन सी प्रोसेस है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस हुई वहां पे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और कहाँ आप देख सकते हो, आप प्लांट्स को पानी देते हो, ठीक है, तो वो पानी आप कहाँ देते हैं, प्लांट के रूट्स में देते हो, बट द प्लांट एब्जॉर्ब दैट वाटर। वहां पे भी जो प्रोसेस होती है, पानी जो प्लांट के अंदर जाता है, प्लांट के अंदर जाना मतलब क्या, इट इज एब्जॉर्ब बाय द सेल ओनली, so that process is also osmosis, nothing else. So diffusion and osmosis, these are the two processes by which materials transferred in the cell. Here in the tabular manner I have shown you the difference between diffusion and osmosis. One difference is here, diffusion is for gaseous exchange, osmosis is for exchange of water. In diffusion, semi-permeable membrane is not required, whereas in osmosis, semi-permeable membrane is required. Now you know that the meaning of semi-permeable membrane. तुम्हारा जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा मेम्ब्रेन है, इट इज अ टाइप ऑफ semi-permeable membrane. So ये दो प्रोसेस you have to keep in your mind, these two processes, diffusion and osmosis. These two are the very important process for the transfer of material inside the cell. Now one topic is there in your textbook, how the cell behave when it is put inside the different types of solutions. Solution means कि आपको मैंने ऐसा एग्जाम्पल दूं कि सेल है कोई और उसको मैंने शुगर के सोल्यूशन में रखा है, मतलब चीनी और पानी को मिलाया और उसके अंदर मैंने सेल को डाल दिया, तो सेल पे क्या असर होगा, या मैंने नमक और पानी मिलाया और उसमें सेल को डाल दिया, फिर सेल को क्या होगा. So here 3 different type of solutions are mentioned in your textbook. Also this part is there. You can read that part from there also for the more clarity of yourself. So how many solutions I have mentioned here? It is the 3 types of solutions. So these 3 types of solutions are, पहला मैंने लिखा है hypertonic solution. अभी क्या है हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब, पहले रीड करेंगे फिर मैं समझाती हूँ. When medium surrounding cell has lower water concentration than the cell. कैसा, आपने सेल को किसी ऐसी जगह पे रखा, मीडियम मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन में डाला जहां पे कि वाटर का जो अमाउंट है बाहर कम है और सेल के अंदर ज्यादा है. क्या लिख रहे हैं, व्हेन मीडियम सराउंडिंग सेल हैज लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर के मीडियम में कम वाटर है और सेल के अंदर वाटर ज्यादा है. अभी वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर साइड. अभी हायर साइड कौन सी है आपकी, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है. क्यों, क्योंकि द टाइप ऑफ सोल्यूशन इज hypertonic solution. See, questions are also asked on this ki what happen when you put the cell into this type of solution. So you have to keep in your mind these all. Hypertonic क्या, सेल के अंदर पानी ज्यादा और सेल के बाहर पानी कम, वाटर कॉन्सेंट्रेशन सराउंडिंग मीडियम में लोअर और सेल के अंदर ज्यादा. तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, वाटर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो सेल के अंदर से पानी बाहर निकलने लगेगा. कहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर, वहां से पानी बाहर मूव होगा. सो एज द रिजल्ट क्या होगा, सेल बिकम श्रिंक. जो सेल है आपका वो
सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके बाहर आ रहा है। The next type of solution is isotonic solution. The meaning of iso is equal. So when medium surrounding cell has equal water concentration of the cell, दोनों साइड पे इक्वल है। So क्या होगा यहाँ पे भी? जितना पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी अंदर भी है। तो यहाँ पे सेल की साइज में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सेल जैसा है वैसा ही रहेगा। The next type is hypotonic solution. When medium surrounding cell has higher water concentration than the cell. बाहर पानी ज्यादा और सेल के अंदर पानी कम है। Now what happened again from higher water concentration to lower water concentration? ज्यादा वाले से कम वाले की साइड पे जाना है। तो फिर क्या होगा? सेल पानी अपने अंदर लेगा एंड सेल बिकम स्वेल। ये स्वेल वाला प्रोसेस आपका कब होता है? जब स्प्राउट आप खाते हो तब आप पानी में भिगो देते हो, है ना, चना, मूंग, किसी भी चीज को, या आपने रेजिन्स, किशमिश को देखा है जो हम खीर में डालते हैं, वहां पे भी खीर में जब वो पड़ जाता है तो उसका साइज जो है वो चेंज हो जाता है, पहले वो ड्राई होता है। So all that processes are why happen because hypotonic solution होता है। बाहर पानी का concentration ज्यादा, अंदर पानी का concentration सेल के अंदर कम, तो बाहर से अंदर पानी आएगा। पानी बाहर से अंदर आ रहा है, that means कि cell become swell. So these three types of solutions are there: hypertonic solution, isotonic solution and hypotonic solution. So just take a recap. Hypertonic में क्या होगा? सेल shrink हो जाएगा. Why it becomes shrink? Because the water concentration on the outer side is less. और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो हायर टू लोअर। आइसोटोनिक में दोनों का सेम, इसीलिए कोई भी चेंज नहीं। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम और बाहर ज्यादा, तो बाहर से अंदर की साइड पे मूवमेंट शुरू होगा। सो दिस इज हाउ योर सेल बिहेव व्हेन यू पुट देम इनटू दीज थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। दिस टॉपिक इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, सो यू जस्ट रीड दैट टॉपिक अगेन एंड यू विल डेफिनेटली गेट द मोर क्लैरिटी। हियर इन द फिगर ऑल्सो आप देख रहे हो H2O बाहर जाते दिखाया है इस वाले फिगर में। पहले फिगर में H2O इज मूविंग आउटसाइड, एरो बाहर की तरफ है। सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है? अंदर और बाहर दोनों की साइड जा रहा है। और तीसरी फिगर में क्या है? सिर्फ अंदर की साइड मूव हो रहा है, इसीलिए सेल स्वेल हो गया। यहाँ पे सेल की साइज पे कोई, दे हैव शोन यू ऑल थ्री कंडीशंस हियर, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. Now keep in your mind, cell wall is present in the plant cell exclusively. It is not present in the animal cell. Animal cell में cell wall नहीं होता है, plant cell में cell wall होता है. Cell wall is made up of cellulose. जैसे starch होता है, आपने starch का नाम सुना है खाने वाली बहुत सारी चीजों में, जैसे कि राइस में, पोटैटो में स्टार्च होता है. इन द सेम वे सेल्यूलोज इज द टाइप ऑफ शुगर. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दैट टाइप ऑफ शुगर विच वी कॉल्ड एज सेल्यूलोज. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. इट इज अ रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. रिजिड मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और प्लांट सेल में उसके बाहर से एक लेयर होगी सेल वॉल की, जबकि एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा. एनिमल सेल में सबसे बाहर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में एडिशनली क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल. प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम एनिमल सेल. Most of the plant cells walls are made up of cellulose.
ज्यादातर प्लांट के सेल वॉल सेल्यूलोज से बने होते हैं, एक आधा नहीं भी हो सकते हैं सेल्यूलोज से बने। सेल वॉल तो है लेकिन वहां पे सेल्यूलोज की जगह कोई और शुगर होगा। आपने कभी ये टर्म पढ़ा है र्यूमिनेंट एनिमल्स? कौन से होते हैं? गाय, बकरी। ये लोग अपना खाना कैसे चबाते हैं? आधा खाना चबाते हैं। आपने 7th स्टैंडर्ड में आई थिंक सो पढ़ा है। आधा खाना चबाते हैं और फिर से मुंह के अंदर they are again chewing the food. Why they are doing this? Because animals are eating the plant parts. गाय, भैंस, बकरी ये सब प्लांट्स खाते हैं and they are having cellulose in that. प्लांट खा रहे हैं मतलब प्लांट के सेल्स को खा रहे हैं, तो प्लांट के सेल को खा रहे हैं तो उसमें सेल वॉल है and that cell wall is made up of cellulose. So exclusively they are digesting the cellulose. बट वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ईटिंग प्लांट पार्ट। आपको मालूम है कि हम भी खाते हैं सब्जियां, फल, ये सारी चीजें, लेकिन इन आवर बॉडी वी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सो दिस इज द डिफरेंस। यू कैन स्टडी मोर अबाउट र्यूमिनेंट एनिमल बाय टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड बुक। सो क्यों वो जुगाली करते हैं? बिकॉज दे आर ईटिंग द प्लांट्स एंड प्लांट्स आर हैविंग सेल्यूलोज इन टू इट. We human beings can't digest cellulose. Though we are eating the plant food, but we can't digest cellulose which is present in the food. Functions of cell wall. Cell wall gives a definite shape to the plant cell. It provides mechanical strength to the cell. It protects the protoplasm against injury. It gives rigidity to the cell. See, if we are going through the main function of the cell wall, it is for the protection and strength of the cell. Why it is required? Because plants are exposed to the environment. Plants जो हैं वो हमेशा बारिश, धूप, हवा इसके लिए खुले हुए हैं। उनको कोई घर बना के नहीं दे रहा है कि तुम घर के अंदर बंद रहो, तुम्हें बारिश नहीं लगेगी, तुम्हें धूप नहीं लगेगी, ऐसा नहीं होता है। सो फॉर देयर प्रोटेक्शन दे आर हैविंग एन एक्सटर्नल लेयर विच इज ऑफ सेल वॉल। उनके प्रोटेक्शन के लिए ये लेयर है वहां पे सेल वॉल की। दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैविंग अ एडिशनल लेयर अराउंड देमसेल्फ. And that additional layer is nothing else, it is cell wall. Cell wall which is made up of cellulose. It gives protection, it gives rigidity to the cell and it is providing the definite shape to the plant cell. So these are the functions of cell wall. So we have studied two basic parts. One is the plasma membrane and the next one is the cell wall. Now moving to the next one, cytoplasm. Cytoplasm. A cell is enclosed in a membranous casing and is filled with a liquid substance which we call cytoplasm. There are many cell organelles in a typical cell which is embedded in cytoplasm. सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी लिक्विड होता है। सेमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से पानी की तरह लिक्विड नहीं है। इट इज समथिंग लाइक जेली लाइक सब्सटेंस। जैसे जेली सेमी सॉलिड है ना ही पूरा लिक्विड है ना ही पूरा सॉलिड है, वैसे ही साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर भरा हुआ ये एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस है। उसमें ही जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तुम्हारा, फिर न्यूक्लियस है, ये सारे चीजें उसके अंदर ही इम्बीडेड। इम्बीडेड मीन्स जैसे कि आप केक में नट्स कैसे लगाते हो, केक के ऊपर कुछ सजावट कर दी, वैसे ही उसके अंदर जो है वो सेल ऑर्गेनल्स इम्बीडेड होते हैं। Here I have mentioned functions of cytoplasm. Cytoplasm helps in intracellular distribution of enzymes, nutrients and other biomolecules within the cell. अभी सेल है, it is the living organism, living है, सेल एक लिविंग थिंग है।
तो उसको जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स। तो ये सारी चीजें कहीं तो रहती होंगी ना सेल में। तो दीज सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें सेल अपने आप बनाता भी है। बायोसिंथेसिस, आई हैव मेंशन सिंथेसिस। सो दैट सिंथेसिस मीन्स मेकिंग होता है। सो दैट सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। So these two are the primary work of the cytoplasm. Cytoplasm मैंने क्या बताया? It is the semi-liquid substance which is filled inside everywhere in the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये लिक्विड फिल्ड होता है और इसी लिक्विड में सेल ऑर्गेनल्स इम्बीडेड होते हैं, उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हमारा ब्रेन वैसे सेल के लिए न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल, वेरी मेजर स्ट्रक्चर। बिकॉज जैसे हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन क्यों है? फॉर कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी ब्रेन इज प्रेजेंट। सो इन द सेम वे कंट्रोलिंग द सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। It is a dense spherical structure embedded in the cytoplasm. Again here, ये भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, जनरली इन द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल में। डेंस डार्क स्ट्रक्चर होता है। अभी सेल के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन था जिसको हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होगा विच बी नेम्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अराउंड क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड कौन सा मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर एनवेलप और मेम्ब्रेन possess many pores called न्यूक्लियर पोर। अभी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है पूरा एक कॉमन स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब कि ऐसा बाउंड्री वॉल कि उसके अंदर कुछ आ जा ना पाए, ऐसा नहीं होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर आना जाना चलता रहता है। सो फॉर दैट पर्पस स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद, होल्स होते हैं वहां पे। सो दीज होल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल के सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। तो मैंने कैसा बताया? जैसे सेल है, सेल कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वैसे ही न्यूक्लियस कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सेल के अंदर जो लिक्विड फिल है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फिल है दैट वी कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी से न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। सो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज देयर। लेकिन न्यूक्लियस में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस इज द वेरी मेजर पार्ट, इट इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। तो उसके अंदर कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव भी होगा? यस, डेफिनेटली। सो inside the nucleus chromatin fibers or chromatin, a thread like structures are present that is composed of genetic material called as DNA, deoxyribonucleic acid and proteins। अभी ये DNA का रोल कहाँ पे क्या आ गया? DNA क्या है? These questions are in your mind। तो DNA क्या है? जब भी आप डीएनए का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? डीएनए टेस्टिंग, ये वो। सो डीएनए इज वेरी एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और हर सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पास होने वाला मटेरियल है। इफ यू आर लुकिंग लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर मदर, फादर और योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन या आपके परिवार में किसी के जैसा, मैटरनल और पैटर्नल, दादी घर या नानी घर, दोनों में से कहीं से भी जैसे आप दिखने में हो,
या some of the structures and behavior are same from them, that means the DNA is passing from one generation to next. ये ऐसा होता ही है because we are the offspring, हम अपने मदर और फादर से ही आए हैं. तो डीएनए जो है हमारी बॉडी में वो मदर और फादर दोनों का है. सो वो डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में. हर सेल के अंदर न्यूक्लियस और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है. सो डीएनए इज व्हाट? इट्स का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. Here, during cell division, chromatin is condensed into thick cord-like structure called chromosomes. Here, one more term is here, which is called chromosomes. अभी chromosomes क्या होते हैं? जब सेल नॉर्मल पोजीशन में होता है तो उसके अंदर थ्रेड लाइक ये डीएनए अरेंज होते हैं. बट वेन सेल इज गोइंग टू डिवाइड, आपको ये पता है कि एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है ना. सेल डिवाइड करते हैं और एक सेल से दूसरा सेल बनता है. जैसे आपके हेयर, बाल कैसे लंबे होते हैं? सेल डिवाइड करता है हेयर का. नाखून कैसे लंबे होते हैं? सेल डिवाइड करता है नाखून का. सो वेन द सेल इज डिवाइडिंग एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, दैट क्रोमेटिन फाइबर्स आर अरेंज्ड. वो थिक स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं. दैट थिक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. द क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स एंड ईच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग. क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं. आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन. तो एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन एंड ईच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर. जैसे कि अगर हेयर कलर, उसके लिए एक जीन होगा. स्किन का कलर, उसके लिए एक. आपकी लंबाई कितनी होगी, उसके लिए एक जीन. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बॉडी में एंड फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक वन जीन इज देयर. सो क्या क्या मैंने बोला अभी? डीएनए होता है. डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर. देन वी टॉक्ड अबाउट द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम कब बनते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड. वो जो आपके डीएनए थे वो थिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं एंड दैट थिक स्ट्रक्चर इज द क्रोमोसोम्स. फिर क्या होता है? क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं. हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है. Till here I think so it is understand by you कि ये चीजें हुई. अभी ये सारी चीजें न्यूक्लियस में. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. यही जीन्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते हैं एंड दे आर हैविंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कैसे? इंफॉर्मेशन they are having the information regarding the different type of characteristics. That DNA is passed from your dada dadi, nana nani also, because your mother is the offspring of your nana nani and your father is the offspring of your dada dadi. तो ग्रैंड पेरेंट्स से भी ये जीन्स आपकी बॉडी में आते हैं. इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप अपने पेरेंट जैसे ही हो. मे बी यू आर सिमिलर टू आपके मामा, आपकी मौसी, इनके जैसे भी आप हो सकते हो बिकॉज द जीन्स आर फ्रॉम देम ऑल्सो. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द and the basic things which is present inside the nucleus. Here in this figure I have shown you the structure of nucleus. You can clearly see here that this one is the central part which we called as nucleolus. ये जो ब्राउन आप लेयर देख रहे हो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था सेल के अराउंड, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो बीच बीच में आप पैसेज देख रहे हो ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पैसेज है, जिससे इस न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है.
और साइटोप्लाज्म के बाद क्या होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सब्सटेंसेस आ और जा सकते हैं, किसके थ्रू, दीज न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। एंड ये जो थ्रेड लाइक ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज योर क्रोमेटीन। यहाँ पे जो लिक्विड भरा है, दैट लिक्विड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल में, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस में। सो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर द क्रोमेटीन फाइबर्स। यही तुम्हारा जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, दे आर अरेंज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस। You can study more about nucleus from reference books also, from internet also. आप एक दो चाहो तो और वीडियो साथ में देख लीजिए, जिससे ये और भी क्लैरिटी आपको आएगी। This is actually the very clear structure of the nucleus. In your textbook also, I think so, the structure of nucleus is there. Function of nucleus, nucleus control all the metabolic activities of the cell. सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड है। सो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास करता है। इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, एक सेल से दूसरा सेल जो बनता है, उसकी प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। सो टुडे फॉर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि क्या क्या था हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन वी हैव अ डिस्कशन अबाउट सेल वॉल, देन अबाउट द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. So these four are the different type of things which we had studied today, and we have discussed about the osmosis and diffusion also. These two are the processes through which the substances are transferred from one cell to another. सेल के अंदर और बाहर मटेरियल्स के आने जाने के लिए ये दो प्रोसेस फॉलो कर रहे थे हम. We have a vast discussion about the genetic material also, about the DNA, genes, हर एक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट है DNA का, that we called as gene. Gene is the functional unit of DNA. DNA is the genetic material which is present in the nucleus of the cell. Then we have a discussion about the three types of solutions also. Hypertonic solution, isotonic solution and hypotonic solutions, and what happen when we put the cells in these type of solutions also. Cells shrink हो जाएंगे जब वो hypertonic solution में होंगे, cells same size के रहेंगे जब वो isotonic solution में होंगे, and cell swell हो जाएंगे, फूल जाएंगे जब वो hypotonic solution में जाएंगे. So these three are the types of solutions which we have studied. So this is the part which we have covered right now. In my third video, I will cover the cell organelles, their functions, and about the cell division also, and then the lesson is over. So kindly revise the portion which I am taking in the video right now, and the previous one also, so you will get the more clarity. सिर्फ मेरे बोलने से आप नहीं सीखोगे. You have to take more clarity by studying on your own. For better understanding, you can see more videos which is regarding the cell on which is present on the internet. Many videos are there. So by the time, bye. Take care of yourself and your family. Be healthy, happy. Feel relaxed. If any query is there, kindly send it on the feedback column. I'll get back to you. Write the query in the proper sentences that I can understand. Bye. Take care of yourself.